محمد قبلہ آغا حسنین عباس صاحب سے کہ وہ اپنے خصوص انداز میں فضائل حسین محمد علی محمد خان فرمائے نعرہ کی دھوپ میں اس طرح استعمال کیجیے کہ اسلام آباد سے سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں ان کی جو طویل تک کا سفر ہے وہ ختم ہو جائے تھکاوٹ ختم ہو جائے. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. نعرہ رسالت حلالی مالی کی پہچان گلے کا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ ہے کسیدہ راستہ. برائے تجلیل ظہور امام زمان اسلام برائے تعجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ الصلوات. برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات عادتاً نہیں عبادتاً ہدیہ الصلوات. آئیے مل کر ابتداء مجلس میں جمیع شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں. بلاوالوں کی اس بستی سے جتنے شیعان حیدر کرار دنیا سے کوچ کر گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بالخصوص ان مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے ایصال ثواب کے لیے کہ جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار. صلوات کی تلاوت. جتنی آپ کی تعداد ہے اس کی مناسبت سے صلوات بہت ہی دھیمی تھی. مایوس نہ جانے تو پرخلوص صلوات کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العبدهي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الزهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم الطوبة والسكر أشجع المتين أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي
السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصري فضائلهم ومناكبهم وولايتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي بن الحسين عليه السلام: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کی شایان شان، جس کے دل میں آل محمد کی مودت جس قدر موجزن ہے، اتنی بلند صلوات کی تلاوت کرو. آواز بلند صلوات. سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنی زندگی میں چل کے حسین ابن علی کے دروازے پہ آ گیا. پاکستان اس بات کو جانتا ہے، میں آل پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں. صرف شیعہ خوش نصیب نہیں ہے، ہر وہ اہل سنت بھی خوش نصیب ہے جسے اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایام حسین میں حسین منا رہا ہے. ہر وہ انسان، اور صرف وہی نہیں کہ جو مجلس اعزا میں آ گیا، وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں کہ جو اپنی دکانوں کو بند کر کے ہمارے جلوسوں کو رستہ دیتے ہیں، اور ہمارے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، حسین کے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے سے ماتمی جلوس گزرنے دیتے ہیں. وہ اہل سنت بھی خوش نصیب ہیں جو ان ماتمی عزاداروں کو سبیلے لگا لگا کے پانی پلاتے ہیں. وہ احباب بھی خوش نصیب ہیں، وہ اہل محلہ بھی خوش نصیب ہیں جو اس جلوس کے لیے رستے بدل لیتے ہیں. ہر وہ انسان خوش نصیب ہے جس کا کسی نہ کسی انداز میں حسین ابن علی سے تعلق ہے. اور یہ تعلق عام نہیں ہے. جب آپ اس مجلس اعزا میں آ جاتے ہیں یا حسین سے اپنا تعلق استوار کر لیتے ہیں یا حسین سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں نا، میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگوں، جب آپ حسین سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں تو کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھتے ہیں بدیاں بھی لکھتے ہیں، جب آپ اپنا تعلق حسین سے بنا لیتے ہیں تو فرشتے ہمارے نام اعمال میں اس بات کو لکھ دیتے ہیں کہ نہ یہ کل یزید والے تھے نہ آج یزید والے ہیں. اپنا تعلق حسین سے بنانے کے لیے ہم مائیں بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کر جلوسوں کی شکل میں آتے ہیں. ہم بتانے کے لیے آتے ہیں، اور نہ سمجھے زمانہ کہ یہ کسی کی دل آزاری کے لیے کیا، یا یہ جو رستے ہم بند کرتے ہیں یہ خدا نخواستہ کسی کے جو ہے نا مقدس عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے. نہیں بابا، ہم تو سنت رسول ادا کر رہے ہیں. میں نے کوئی جملہ جوش خطابت میں نہیں کہا ہے. ممکن ہے کوئی ذہن یہ سوچ رہا ہو کہ آقا یہ کیسے سنت رسول اللہ ہوگی؟ سنت تو وہ ہوتی ہے جو رسول نے کی ہو. آؤ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. دیکھو نا، کل تک جو ہماری مجالس اعزا امام بارگاہوں کے اندر تھی، آج وہ جلوسوں کی صورت میں ہم باہر لے کے آ گئے. کل تک جو مجلسیں ہم مساجد میں کروایا کرتے تھے وہ آج ہم باہر لے کے آ گئے. جلوس تو لازم ہوتا ہے نا، جلوس کی صورت میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جلوس ہی نکالنا ہے تو مجلس امام بارگاہ میں کر لیا کرے، صرف جلوس لے کے نکل جایا کرے. تو بابا ہم تو کوئی بھی کام خود سے کرتے ہی نہیں ہے نا. مکتب تشیع تو سنت رسول اللہ کا نام ہے، ہمیں یہ سنت رسول اللہ نے دی تھی. یہ کوئی ممبر
परमानेंट मेंबर नहीं है, ये कोई मेंबर पक्का मेंबर नहीं है। आम रूटीन में आपका ये मेंबर यहाँ नहीं पड़ा होता, ये चौक चौराहा जो है आम रूटीन में इस शक्ल में नहीं होता, मातमी अज़ादार यहाँ पे नहीं होते। लेकिन चौक बंद करने का आखिर मकसद क्या है? आओ तारीख खंगाल के देख लेते हैं। मकसद है सुन्नत रसूल को अदा करना। भाई क्या हुआ था गदीर के मकाम पर कि जब गदीर का मकाम आया, मक्के वाले काफिले मक्के को लौट जाते थे, मदीने वाले मदीने को लौट जाते थे, यमन वाले यमन को लौट जाते थे, शाम वाले शाम को लौट जाते थे। नबी ने उस चौक पे सबको इकट्ठा कर लिया। शाम वालों तुम भी रुक जाओ, यमन वालों तुम भी रुक जाओ, मदीने वालों तुम भी रुक जाओ। उस चौक के अंदर नबी ने वक्ती मिंबर बना के विलायत अली इब्ने अबी तालिब का ऐलान किया। यानी नबी ने बता दिया कि लोगों याद रखो, जब मकसद अली की विलायत पहुंचाना हो, जब मकसद फजाइल अली पढ़ना हो, तो वक्ती मिंबर बनाना बिद्दत नहीं, सुन्नत रसूल हुआ करती है। सुन्नत रसूलुल्लाह, रसूल ने सिखाया कि जहां पैगाम अली की विलायत पहुंचाना हो। हाँ, ये विलायत अली इब्ने अबी तालिब के जिसके लिए करबला बपा हुई। करबला का वाकया किस लिए बपा हुआ था? क्या ख्याल है आलम इस्लाम का? अगर कोई ये समझता है ना कि इमाम हुसैन ने करबला में नमाज को बचाया था, तो दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ नमाज को नहीं बचाया था। कोई ये समझे कि सिर्फ नमाज। भाई देखिए, अजान हुई, हम रुक गए। एहतराम अजान जो सिखाए उसे हुसैन कहा जाता है। अजानों को भी बचाया था, नमाजों को भी बचाया था, रोजों को भी बचाया था, खुम्स को भी बचाया था, हज को भी बचाया था, ज़कात को भी बचाया था, कुल्ले दीन को बचाया था करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने। लेकिन अगर आप ये तसव्वुर करें कि करबला का मारका नमाजों का झगड़ा था, तो नमाजें तो वो भी पढ़ रहे थे। भाई इसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि मैं कोई नमाज से दूरी की तरकीब करूँ, नहीं, वो पंजगाना वाजिब है, किबला की इब्तिदा में आपने पढ़नी है, ठीक है, खुदा आपको सलामत रखे, इन आगयून को सलामत रखे जो खिदमत अंजाम देते हैं। पंजगाना वाजिब है, उससे कोई राह फरार नहीं है, उस तरफ मौजूद सुखन नहीं है, ठीक है। जो नहीं पढ़ता वो बरिया जिम्मा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये मकसद नहीं है कि नमाजें तो यजीदी भी पढ़ रहे थे। अगर कहें कि रोज़ों की जंग थी तो रोज़े तो वो भी रख रहे थे। अगर कहो कि अजानों की जंग थी, अजानें तो वहाँ भी थी। अगर कहो कि जहाद की जंग थी तो जहाद तो वहाँ भी था। अगर कहो कि ज़कात की जंग थी तो ज़कात तो वहाँ भी थी। आखिर जंग किस चीज़ की थी मैं तो बता ही नहीं सकता, मैं तारीख से मिसाल दे रहा हूँ। जब इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली ने फौज अश्किया से सामने से पूछा था ना, लश्कर यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान से, ठीक है भाई, पूरा नाम लेने पे तो FIR नहीं है ना, मैं तो पूरा नाम ले रहा हूँ। यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान से जब पूछा था, लश्कर अश्किया से हुसैन इब्ने अली ने पूछा था, मुझे जानते नहीं हो? कहते हैं जानते हैं। मुझे पहचानते नहीं हो? पहचानते हैं। तेरी माँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जानते हैं। कहा फिर क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने फरमाया इन्ना नक़्तुलुक बुग़्ज़न लिअबीक, हम तुझे तेरे बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं, तेरे बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। फिर जुमला कहने की इजाजत दीजिए अहले इलाका, करबला जंग थी बुग़्ज़े अली इब्ने अबी तालिब की, करबला जंग थी गदीर के बदले की, करबला जंग थी विलायत अली इब्ने अबी तालिब की। फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जमाना तुमसे सवाल करता है, वही खैबर फिर पढ़ते हो, वही खंदक फिर पढ़ते हो, वही मार के फिर पढ़ते हो। अगरचे हर कोई अपने अंदाज से पढ़ता है, नई नई जहाद निकलती रहती हैं, महशर तक निकलती रहेंगी। तो अगर कोई सवाल करे ना जवानों, और वो ये पूछे कि कितनी पढ़ोगे अली की विलायत, कितना पढ़ोगे फज़ाइल अली, तो जवाब दे दिया करो कि करबला जंग थी विलायत अली इब्ने अबी तालिब की। इसीलिए आज भी हुसैन का मिंबर किसी और बात के लिए नहीं, अली की विलायत पढ़ने के लिए है। आज भी मिंबर हुसैन इब्ने अली, विलायत अली इब्ने अबी तालिब पढ़ने के लिए है। अलबत्ता जो मुझे सुनते रहते हैं रेगुलर सामीन, माशाल्लाह बड़ी बड़ी दूर से, चीचा वतनी से और करीब करीब से लुत्फ फरमा के आए, वो जानते हैं इस बात को कि मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ, जो भी पढ़े विलायत हकीकिया पढ़े,
جو بھی پڑھے بھائی ولایت پڑھو، ولایت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک گاؤں میں 4 شیعہ ہیں تو نتیجے میں 4 سے 8 ہو جائیں. ایک گاؤں میں اگر شیعہ سنی کا اتحاد ہے تو نتیجے میں اتحاد قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ ادھر ولایت پڑی جائے ادھر ایک کا رخ ادھر ہو جائے، ایک کا رخ ادھر ہو جائے. ایسا نہ ہو ولایت پڑی جائے شیعہ 4 سے 2 ہو جائیں، نہیں پڑی جائے تو 4 سے 8 ہو. جو بھی پڑھے. اور یہ ولایت ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ ولایت جو سب سے بہترین پڑھی وہ مولا سید سجاد نے پڑھی. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا. کربلا کے واقعے کے بعد مولا سید، میں نے ابھی شام کا نام لیا ہی نہیں، مولا سجاد کا نام لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، لیکن میں ان آنسوؤں کو دور کرنا چاہتا ہوں. یہ پرابلم ممبر کی رہی ہے کہ ہم نے صرف بیمار سجاد سنایا ہے، ہم نے یہ بتایا ہے کہ مولا سجاد کربلا میں بیمار تھے. آغا جی لا شک کا فی مولا باذن اللہ بیمار تھے، لیکن ہم نے امام کی بیماری تو سنی ہے، شجاعت نہیں سنی. جی تھوڑے ہاتھ اٹھے ابھی. امام شجاع تھے، وقت کا امام تھا اور نام تھا علی. علی ہوتا ہی وہ ہے جو شجاع ہو، جو میدان سے بھاگتا ہو. وہ نہ کل علی تھا نہ آج علی ہے. ایک ہی مشترکہ ہے. نہ سمجھے زمانہ کہ مولا سجاد کربلا میں صرف بیمار تھے، اگرچہ باذن اللہ بیمار تھے، لیکن ہماری بیماریوں میں فرق ہے. اگر کوئی بیمار ہے آل محمد کے صدقے خدا شفا عطا فرمائے. ہم جب بیمار ہونا تو بیماری ہم پہ حاوی آ جاتی ہے، لیکن امام اسے نہیں کہا جاتا جس کی بیماری اس پہ حاوی ہو، بلکہ جو بیماری پر بھی حاوی ہو اسے امام کہا جاتا ہے. حسین کا بیٹا، شجاعت حسین کا وارث، علم بردار علی ابن ابی طالب. نام کیا ہے میرے مولا کا؟ علی. جتنے بیٹے تھے میرے مولا کے سب کا نام کیا رکھا تھا؟ علی رکھا تھا. اور دیکھ لو نا، آج ہم بھی ماں باپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا اچھا نام رکھیں. ٹھیک ہے، جدت کے چکر میں نام بگاڑ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کے نام دیکھ لو، علی، اون محمد، قاسم، اکبر. ہاں بیٹیوں کے دیکھو، زینب، ام کلثوم، رباب. اس کے علاوہ تو ہم سے اب تقاضا نہ کیا کرو کن کو مانتے ہو کن کو نہیں مانتے. ہمارے نام دیکھ لو، جن جن کے ناموں پہ ہماری اولادوں کے نام ہیں انہیں ہی تو مانتے ہیں. اور آج زمانے کو بڑا شوق ہے، میں یہاں پہ ایک بات کہا، آج زمانے کو بڑا شوق ہے نا، وہ حسین کے مقابلے میں یزید کو منوانا چاہتا ہے. یہی 4 مصروں کا سہارا سحر شیرازی کے لے رہا ہوں اور بات تمام کرنے لگا ہوں شیعہ سنی صاحبان، اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نہ سوچے زمانہ کہ حسین کے مقابلے میں جو یزید کو منوانا چاہتے ہیں، آؤ نسخہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. اجروں میں بیٹھ کے اسے کیا رضی اللہ بنانے پہ تلے ہوئے ہو، بل پاس کروا کے اسے کیا رضی اللہ بناؤ گے، کیا اسے شہزادہ بناؤ گے. نسخہ ہم دے دیتے ہیں کہ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. حجروں میں بیٹھ کے یزید بلا رضی اللہ بنتا ہے، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. مجموع کی داد تو مجھے ہزاروں کے مجمع قدموں پہ کھڑے ہو کے بھی دیتے ہیں داد، بے شک نہ دینا، لیکن اگر ضمیر بولے تو پھر مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے حسینی بن کے بولنا شیعہ سنی صاحبان. ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. آپ لوگوں کے سامنے ذرا ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام کربلا، تو بھی یزید را. بات پہنچ رہی ہے. نام میرے مولا کا کیا تھا؟ علی. علی. اور جتنے بیٹے تھے میرے مولا کے سب کا نام مولا نے علی رکھا تھا. ٹھیک ہے، علی اکبر، علی اصغر، عبداللہ رضی جنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا نام علی اصغر. البتہ یہ اکبر اصغر جو ہے نا، بڑی باریک سی جو ہے نا لطافت کی منزل سے گزارنا چاہتا ہوں. یہ جو اکبر اصغر ہے علی میں، یہ ایک دوسرے کی نسبت ہے. بھئی اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ بڑے کو.
अलबत्ता अल्लाह अकबर का माना ये नहीं है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मासूम से जब पूछा गया ना, मौला ने पूछा अल्लाह अकबर का माना क्या है, तो साहबी ने कहा मौला अल्लाह हर चीज से बड़ा है। मौला ने फरमाया कौन सी चीज है जो उसके मुकाबले में आए वो उससे बड़ा हो जाए। फिर मौला क्या मतलब है, फरमाया अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, अल्लाह इस चीज से बुलंद है कि वस्फ करने वाले उसका वस्फ बयान करें। हाँ अल्लाह अल्लाह तो वो कायनात में बुलंद मर्तबा। अच्छा तो अकबर का माना होता है बुलंद, असगर छोटे को कहते हैं, अकबर बड़े को, कबीर इसी से है। अकबर यानी सबसे बड़ा, असगर छोटा। अली अकबर यानी बड़ा अली, अली असगर यानी छोटा अली। जबकि जुमला रुक के कहूं अली असगर होता ही नहीं है। भाई असगर तो छोटे को कहते हैं, अली तो छोटा होता ही नहीं है। तो ये जो अली अकबर और अली असगर है ये बिनिस्बत कहा जाता है, यानी अली असगर छोटा असगर, यानी बड़े की निस्बत छोटा असगर, वरना अली असगर भी हो तो अकबर होता है। अली होता ही वो है जो बुलंद हो। तो मेरे मौला का नाम भी क्या है, अली है। दरबार यजीद में ये सिर्फ नाम का अली नहीं था, ये शुजात का भी अली था। मैं तेजी से मुकद्दमाती गुफ्तगू को इस्तेमाल करता हुआ मंजिल की जानिब लेके जाऊं। ये नाम का भी अली था। अली पहला हो तो भी अली होता है, अली चौथा हो तो भी अली होता है, अली छोटा हो तो भी अली होता है, अली बड़ा हो तो भी अली होता है, यजीद छोटा हो तो भी यजीद। ठीक है, तो अब अली नाम मेरे मौला का अली था। फर्क क्या है, लड़े मौला सज्जाद भी हैं। आप कहेंगे कैसे लड़े आगा, आओ मैं दिखाता हूं मौला की जंग। मौला ने तलवार की जंग नहीं की है, मौला ने खुतबे की जंग की है, मौला ने गुफ्तार की जंग की है। लफ्ज बदल दूं, है अली था, लड़ा पहला अली भी है, लड़ा चौथा अली भी है, लेकिन फर्क इतना है जो जुल्फिकार से मरहब को दो नीम करे उसे अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है, और जो अपने खुतबे के अल्फाज को जुल्फिकार बना के यजीदियत को मिसले मरहब चीर दे उसे अली सज्जाद। उसे अली सज्जाद कहा जाता है। मौला ने खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर पढ़ा क्या, जो पहला जुमला मैंने कहा, करबला हुसैनियत पैगाम ही विलायत अली इब्ने अबी तालिब के। उस खुतबे के अंदर मौला ने कोई 90 से ज्यादा मौला अमीर के अलकाबात पढ़े हैं। कितने, 90 प्लस, 90 से ज्यादा मौला अमीर के अलकाबात पढ़े हैं, यानी विलायत अली पढ़ी है। जब हुसैन ने एहतजाज किया था ना वलीद के दरबार में, जब उसने कहा था यजीद बैयत तलब कर रहा है, हुसैन ने एहतजाज किया था तो फरमाया था इन्ना अहलु बैत नबुव्वति व मादिनुर रिसालति व मुख्तलफुल मलाइकति व महल्लुर रहमा बिना फतहल्लाहु व बिना खतमल्लाह व यजीदुन रजुलुन फासिकुन शारिबुल खुमूरे व राकिबुल फुजूरे व मुअलिनुन बिल फिस्के व कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मिसली ला युबायु मिसला। मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता, मौजूद दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन बस हुसैन का ये एहतजाज 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था। पहले हिस्से में हुसैन ने बताया हम कौन हैं, दूसरे हिस्से में मौला ने बताया यजीद कौन है। ये मौला ने मदीने में एहतजाज किया था। जब शाम में गए 2 बुनियादी खुतबे, एक मौला सज्जाद का, एक बीबी ज़ैनब का, दोनों ने मिलके हुसैन के खुतबे को मुकम्मल किया। हुसैन का खुतबा 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था, मैं कौन हूँ, यजीद कौन है, और इधर दोनों के खुतबे ने मिलके बताया ये कौन है और यजीद कौन है। किसने बताया हम कौन है, किसने बताया यजीद कौन है। मौला सज्जाद ने पूरे खुतबे में बताया हम कौन है, हमारी विलायत क्या है। बीबी ज़ैनब ने पूरे खुतबे में ये नहीं बताया हम कौन है, बीबी ने यजीद को ये बताया तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है।
तेरी औकात क्या है? समेट रहा हूं मैं दाद, लेकिन जुमला पूरा आपके हवाले करूंगा, फिर जी भर के दाद और दुआ दे दीजिएगा। बीबी ज़ैनब ने यजीद को उसकी औकात याद दिलाई। मौला सज्जाद ने विलायत अली इब्ने अबी तालिब पढ़ी। लफ्ज बदल देता हूं, सज्जाद पढ़ रहे थे हम कौन है, बीबी पढ़ रही थी तू कौन है। सज्जाद मर्द होके विलायत पढ़ रहे थे, बीबी मस्तूर होके बेशुमार कर रही थी। यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है अली की बेटी। खबर करो अहले कुफर को, अब हुसैनियत का इंतकाम लेगी। कहो यजीद से संभल जाए, आ गई है अली की जी मौला सज्जाद ने पढ़ना शुरू किया खुतबा। मिंबर पे दरबारी खतीब था, मैं अब यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, मजीद 10-15 मिनट लग जाएंगे। मिंबर पे दरबारी खतीब था, उसने उनके फजाइल पढ़े जिनके मुकद्दर में गलती से भी फजीलत कोई नहीं आई। इतना हल्का नहीं था जुमला, जिनके मुकद्दर में गलती से भी फजीलत कोई नहीं आई थी। मौला सज्जाद ने मिंबर पे आके कहा, वैलुका अय्युल खातिब इश्तरैत मरज़ातल मखलूक बिसखतिल खालिक, तुझ पे अल्लाह की लानत हो, तूने बंदे राजी किए, अल्लाह नाराज कर दिया। ठीक है, छोड़ रहा हूँ मैं इसको, ये 15-20 मिनट की गुफ्तगू मैंने यहाँ से छोड़ दी और मैं बिल्कुल मंजिल के करीब आया। अब मौला सज्जाद ने विलायत अली पढ़ना शुरू की। है हमारा सुनने के लिए सलवात ऐसी पढ़िएगा मेरा जी चाहे पढ़ने का। मिंबर पे कौन है? हुसैन का बेटा, शुजाते अली का वारिस, हैबते हुसैन का वारिस, जलाले हसन का अक्कास, अली ज़ैनुल आबिदीन। गरज के पढ़ना शुरू किया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युहन्नास ओतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबइन, ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। 90 से ज्यादा फज़ाइल अली हैं। मौला सज्जाद पढ़ रहे हैं, व फुज़्ज़िलना बिसब बिअन्न मिन्ना नबिय्यल मुख्तार मोहम्मद व मिन्ना सिद्दीक व मिन्ना तैयार व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूले व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा, मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफ अंबातु बिहसबी व नसबी, अना इब्न मक्का व मिना, अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्न मन हुमिल रुकन बिअतराफ़ रिदा, अना इब्न खैर मन तज़र बरसदा, अना इब्न खैर मन तअल वहतफ़ा, अना इब्न खैर मन तौफ़ व सआ, अना इब्न खैर मन हज्ज व लब्बा, अना इब्न मन हुमिल अलल बुराक फिल हवा, अना इब्न मन उसरिय बिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, अना इब्न मन बलग़ बिही जिब्राईल इला सिदरतिल मुंतहा, अना इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अना इब्न अलीयिल मुर्तज़ा। आपको लफ्ज़ की बात बताऊं, अभी अली पढ़ना शुरू किया है मौला ने। मौला फरमाते हैं, अना इब्न मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफैन व ताना बिरुहैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैतैन व सल्लल क़िबलतैन व क़ातल बिबद्र व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाहि तरफ़त ऐन, अना इब्न सालिहिल मोमिनीन व वारिसिन नबिय्यीन व कामिल मुल्हिदीन व यासूबिल मुस्लिमीन व नूरिल मुजाहिदीन व ज़ैनिल आबिदीन व ताजिल बक्कीन व अस्बरिस साबिरीन व अफ़ज़लिल क़ाइमीन मिन आल यासीन रसूल रब्बिल आलमीन, अना इब्नुल मुअय्यद बिजिब्राईल अल मंसूर बिमीकाईल, अना इब्नुल मुहामियन हरमिल मुस्लिमीन व क़ातिलिन नाकिसीन वल क़ासिदीन वल मारिकीन वल मुजाहिद आदाहुन नासिरीन व अफ़र मन मशा मिन कुरैश अजमईन व अव्वल मन अजाब वस्तजाब लिल्लाहि व लिरसूलिहि मिनल मुमिनीन व क़ासिमिल मुअतदीन व मुबीदिल मुशरिकीन व सहमिन मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफ़िकीन व लिसान हिकमतिल आबिदीन व नासिर दीनिल्लाहि व वली अम्रिल्लाहि व बुस्तान हिकमतिल्लाहि व ऐबत इल्मिल्लाहि, समीहुन सफ़ियुन वहियुन महलूलुन ज़कीहुन अब्तहियुन रज़ियुन मर्दियुन मिक़दामुन हुमामुन साबिरुन सवामुन मुहज़्ज़बुन क़व्वामुन कातिलुल अस्लाबी व मुफ़र्रिक़ुल अहज़ाबी, अरबतुहुम इनानन व अस्बतुहुम जिनानन व अमज़हुम अज़ीमतन व अशद्दुहुम शकीनतन, असदुन बासिलुन यदहनुहुम फिल गुरूब इज़ा ज़लफ़तिल असिन्नतु व करबतिल अइन्नतु ता'नर रहा व यज़रूहा फ़ीहा ज़ुरवरिहिल हशीम, लैसुल हिजाज़ व क़ब्शुल इराक़ मक्कियुन मदनियुन खैफियुन अकबियुन बदरियुन ओहदियुन शजरियुन मुहाजरियुन मिनल अरब सैयद
सय्यदुहा व मिनल बगा लैसुहा वारिसुल बशरैन अबू सब्तैन अल हसन वल हुसैन मतलूब कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब ज़ाका जद्दी अली इब्न अबी तालिब। मिलके बोलो अली हक। खड़े बैठे सारे अली हक। ये जब भी नारा लगता है ना ज़मी बोली फलक बोला अली मौला तो हमें फैसलाबाद सिटी का एक वाक़या याद आ जाता है। ये 2 बरस पहले हम फैसलाबाद सिटी में मुहर्रम अल हराम की मजालिस से खिताब कर रहे थे तो एक मोमिन ने खड़े होकर यही नारा लगाया। नारे भी बड़े लॉजिकल होते हैं, ये कोई ठीक है बेहंगम नहीं होते। मतलब ये जो आप पंजाबी में लगाते हैं 1.25 लाख नारा है, ये बड़ा लॉजिकल है। क्या लॉजिकल है कि गदीर के मैदान में कोई 1.25 लाख सहाबी थे, ठीक है, इसके अंदर रमज होती है, ठीक है। तो उसने उस मोमिन ने जो आपको बात बताने लगे हैं, पता है कि उसने यही नारा लगाया खड़े होके कि ज़मी बोली फलक बोला अली मौला। नई चीज जो उसने आखिर में पढ़ी ना वो आपको सुनाने लगे। उसने आखिरी जुमला पढ़ा, उसने कहा मरे मुनकिर मुके रौला अली मौला। तो हम रुक के कहते हैं भाई अगर मुनकिर मर गए तो फिर जलाएंगे किसे? मुनकिरों के मरने की बद्दुआ करने की जरूरत नहीं है, मुनकिर की मौत के लिए अली का नाम काफी है। एक ही मुश्तरका मिलके आवाज सलामत, बाकी दाद समेट दी मैंने। बिस्मिल्लाह, आगे चलते हैं। हाँ, मौला सैयद सज्जाद जी, तवज्जो है आप आपकी, ठीक है। मेरा टाइम 1 से 2 था, बिठाया आपने, ये 2:08 हो गए। अब ये आपको पैकेज का टाइम देना, ठीक है, फिर भी पूरा दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। आप सलामत रहिए। अय्युहन्नास, मौला सज्जाद ने फरमाया ऐ लोगो ओती नसतन व फुज़िलना बिसब, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 फजीलतें दी हैं। बात आगे बढ़ाएंगे बड़ी तेजी के साथ। जिन्हें हम फजीलत समझते हैं ना, मौला फरमाने वो तो अता है, मौला फरमाने वो तो अता है, फजीलतें और हैं। अच्छा, अता और फजीलत का एक फर्क ये भी है कि अता ऐन मुमकिन है सब पे हो, फजीलत सबके हिस्से में नहीं आती। सवाल आप कर सकते हैं अता हम पे भी हो, अता आले मोहम्मद पे भी हो, फर्क क्या है? फर्क जमीन आसमान का है। वो उठा के बंदे कहते हैं अली याज़ु बिल्लाह हम जैसे थे, शर्म नहीं आती। जमीन आसमान का फर्क है। अताएं हम पे भी होती हैं, अताएं आले मोहम्मद पे भी होती हैं, लेकिन फर्क ये है आले मोहम्मद पे जो अता होती है उनकी वजह से होती है, हम पे जो अता होती है 14 के सदके में होती है। 14 के सदके में अताएं मौला की पढ़ते हैं। मौला ने फरमाया अल्लाह ने पहली अता हमें की है इल्म दिया, और 3 इल्म, ठीक होगी बात, हिल्म दिया। मौला कह रहे हैं दूसरी चीज हमें मौला ने हिल्म दी, हिल्म यानी बर्दाश्त, ठीक है। तीसरी चीज बस समाहता, हमें बुजुर्गी दी है तेजी के साथ। अरब कंट्रीज में ये इस्तेमाल होता है समातु शेख, समातु सैयद, यानी गैर सैयद आलिम को शेख कहते हैं, समातु शेख यानी बुजुर्ग, गैर सैयद आलिम, समातु सैयद यानी बुजुर्ग, सैयद आलिम। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत दी। एक एक जुमला अशरों का मोहताज है, लेकिन मैं तेजी के साथ आगे बढ़ूं। बस फसाहता, बोलना हम जानते हैं। बस शजाअता, 5वीं चीज मौला फरमाते अल्लाह ने हमें शुजाअत दी। इधर वाला कुछ बोले, सामने वाले खामोश रहे, इसका मतलब ये होता है सच कह रहा है। और अगर कुछ ऐसा वैसा बोले, मजमा बोल पड़ता है। भाई नकले कोफर कोफर ना बाशत, मेरी करोड़ बार मजाल नहीं है, ला मुनाक्षत फिल मिसाल, लेकिन बिल फर्ज अगर मैं मिंबर पे बैठ के कहूँ मैं सैयद हूँ अली याज़ु बिल्लाह, तो सारा मजमा बोल पड़ेगा किबला क्या कर रहे हैं, बाकी सारा प्यार मोहब्बत अपनी जगह, ये जुर्रत ना करें, इमामा सफेद है।
इमामा सफेद है। मौला सज्जाद ने फरमाया अल्लाह ने हमें इल्म दिया, सामने चुप बैठे रहे। मौला ने फरमाया अल्लाह ने हमें हिल्म दिया, सामने चुप बैठे रहे। अल्लाह ने हमें समाज दी, चुप बैठे रहे। मौला ने फरमाया अल्लाह ने हमें शुजात दी, अगर उनके खानदान में भी कोई शुजा होता वो खड़ा हो जाता, कहता सज्जाद मेरा दादा भी शुजा था, मेरा परदादा भी शुजा था, मेरा भाई भी शुजा था, मेरा फुला भी शुजा था। वो सारे के सारे खामोश रहे, उनकी खामोशी बताती थी ये हैदर कर्रार का बेटा है, हम फर्रार के मानने वाले। वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। और छठी चीज जो मौला फरमाते अल्लाह ने हमें दी है, वो क्या दी है? आपका 66 ही भी है ना, यही है ना? हाँ ठीक है, मैं इसी अंदाज में तर्जुमा करता हूँ। मौला फरमाते हैं छठी चीज अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी ऐसी मोहब्बत को रखा है कि वो आज मुहर्रमुल हराम के इस इज्तिमा में यहाँ 66 ईवी के चौक में जमा होके सफर की इस मजलिस अज़ा में 5 सफर 6 सफर मुजफ्फर की इस मजलिस अज़ा में अली के शिया से विलायत अली सुन के खुश हो रहे हैं। वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। और अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। अब कौन से 2-4 बातें कर लूं मैं बड़े प्यार के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, ठीक है? अगरचे असदी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बातें कर रहे होंगे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लेकिन मैं भी एक मकतब की तर्जुमानी करते हुए बातें करता चला जाऊँ। हाँ, शिया सुन्नी साहिबान तशरीफ फरमाया, रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अपने अपने एक एक हर्फ का ज़ामिन हो। वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। पहला जुमला कह रहा हूँ, हम तौहीन वाले नहीं हैं। तौहीन वो करता है जिसका पीर सच्चा ना हो। मैंने पहले कहा बड़ी रुक रुक के मैं बातें करूंगा, ठीक है? गली 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 बिस्मिल्लाह गली गली आप सलामत रहिए। हाँ, तौहीन वो करता है जिसके मुर्शिद सच्चे ना हो। हम तौहीन वाले नहीं हैं, हम किसी की तौहीन नहीं करते। आज देख लो ना, मुहर्रमुल हराम गुजरा, आपके 66 ईबी में भी अशरा हुआ होगा, आस पास बड़े शहरों में छोटे शहरों में अशरे हुए, किसी ने कोई तौहीन की? हम अगर जबरदस्ती कोई तौहीन बनाए तो वो अलहदा बात है, ठीक है? हम तो मुकद्दसात की जो दूसरों के मुकद्दसात हैं उनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन हो मुकद्दस, हो मुकद्दस, शर्त ये है हो मुकद्दस। अब यजीद को कोई मुकद्दस बनाए तो ये तो कबूल नहीं होता ना, ठीक है? बेशुमार लानत है उस पर। तो बहरहाल हम तौहीन वाले नहीं हैं। हमारे पीर ने भी हमें यही सिखाया, मौला आमिर ने, हम तौहीन वाले न कल थे न तौहीन वाले आज हैं। तौहीन हम कभी नहीं करते, ना हम किसी की करते हैं, ठीक है? हम तो आले मोहम्मद वाले हैं। और जुमला ये सच है, मुख्तलिफ खुतबा ने मुख्तलिफ अंदाज में कहा, ये जुमला सच है कि हमें आले मोहम्मद से वक्त ही नहीं मिलता। दूसरों की तरफ वो जाए जिसके पास वक्त हो, हमें तो अली से फुर्सत नहीं है, हमें तो मातम से फुर्सत नहीं है, हमें तो अज़ादारी से फुर्सत नहीं है। तो हम तौहीन वाले नहीं हैं, ठीक है? हम तो हैं आले मोहम्मद वाले, और आले मोहम्मद वाले किसी की तौहीन नहीं करते। और हमारे दिलों में मोहब्बत है आले मोहम्मद की। और किसने डाली? मौला ने फरमाया वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रख दिया है। जुमला एक ही है, घर तक सोचते जाइएगा जुमला वजनी कितना था। जिनकी मोहब्बत अल्लाह दिलों में डाले, भाई बिलों के जरिए जिनकी मोहब्बत जबरदस्ती डाली जाए वो और होते हैं। जिनकी मोहब्बत अल्लाह दिल में डाले उसे अली आली की औलाद। ठीक है, बात पहुंच रही है। तो अभी हम जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए कायदीन क़यादत बेदार है, अकाबरीन बेदार है, शिया जाकिरीन बेदार है, उलमा बेदार है, सब इकट्ठे हैं। कॉन्फ्रेंस जो हुई आपने देख ली,
और फिर वो एक जुमला उठा के लड़ाई ना डाल लिया करो, हमने और मकसद के लिए की थी, तुमने नया महाज खोल दिया। ठीक है, तो वो जो भी है ठीक है, उस चीज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी फिलहाल यकम रबीउल अव्वल पे फोकस। हाँ, कि यकम रबीउल अव्वल को हम तौहीन वाले नहीं है, हाँ हम, लेकिन इतना तो कहने का हक रखते हैं ना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ठीक है, तो यकम रबीउल अव्वल हर इख्तिलाफ से बालतर, कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा, ना देखो कि कायद मिल्लत ने बुलाया, आलिम ने बुलाया, जाकिर ने बुलाया, वाइज ने बुलाया, नहीं, न कायद ने बुलाया, न वाइज ने बुलाया, न जाकिर ने बुलाया। जी जी, मेरा कायद हजरत अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी ही है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कायद ने नहीं बुलाया, किसी जाकिर ने नहीं बुलाया, किसी सुल्तान उस जाकिरीन ने नहीं बुलाया, किसी अल्लामा साहब ने नहीं बुलाया, किसी आगा साहब ने नहीं बुलाया, किसी मातमी सालार ने नहीं बुलाया, किसी अंजुमन ने नहीं बुलाया, तुम्हें वक्त के इमाम ने बुलाया है। अब सारे मिल के बोलो लब्बैक या हुसैन, मिल के खड़े बैठे हाय गोरी, वक्त का इमाम बुला रहा नुसरत के लिए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आमादा है कौम। मौला ने फरमाया अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा, वफुज़िलना बिसब, और 7 फजीलतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, तेजी के साथ फजीलतें। बेअन्ना मिन्ना नबिय्यल मुख्तार मोहम्मद, पहली फजीलत नबी हमसे है, दूसरी फजीलत अली सिद्दीक हमसे है, जाफर तैयार हमसे है, असदुल्लाह हमसे हैं, असदुर रसूल हमसे हैं, और जवानाने जन्नत के सरदार हमसे हैं। ये छोटा अली कह रहा है, और बड़े अली ने भी यही कहा था जब खत आया था, और उसने कहा था या अली तेरा मेरा खानदान एक है। बादशाह अली ने फरमाया खानदान है कैसे एक हो सकता है, बेअन्न मिन्ना नबिय्यल मुख्तार, बेअन्न मिन्ना नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, मिन्ना असदुल्लाह व मिनकुम असदुल अहलाफ, मिन्ना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व मिनकुम सिब्बियतुन नार, मिन्ना सय्यदतु खैर निसाइल आलमीन व मिनकुम हम्मालतुल हतब। उसने कहा खानदान एक है, मैं तू एक है। अली ने फरमाया कैसे हो सकते हैं एक, इसलिए कि रसूल मेरे खानदान से है, रसूल को झुठलाने वाले तेरे खानदान से है, जहन्नम का ईंधन उठाने वाली तेरे खानदान से है, बतूल मेरे खानदान से है, अल्लाह का शेर मेरे खानदान से है, और उसके बरखिलाफ आने वाले कसमें तोड़ने वाले तेरे खानदान से है। मिन्ना सैयदतु निसाइल आलमीन, ज़हरा हमसे है, ज़हरा के बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार मेरे खानदान से है, पैदाइशी जहन्नमी तेरे बच्चे हैं। पैदाइशी जहन्नमी तेरे बच्चे हैं। फरमाया अना इब्नु मक्का तव मिना, मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ। क्या मतलब, यानी मक्का हमारी वजह से कायम है, मिना हमारी वजह से कायम है, जमजम हमारी वजह से है, काबा हमारी वजह से है। मैं उसका बेटा हूँ जिसे मेराज पे ले जाया गया। अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफैन, मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने 2 तलवारों से जंग की थी, रसूल के दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से 2 तलवारों से लड़ता रहा। जुमला तफसील तलब है, 2 तलवारें, एक अली की जाती थी, एक वो जिसका सिपाही था। और 2 तरह के जवाब होते हैं, आगे मौजूद है जवाब नक़ज़ी और जवाब हिल्ली। जवाब नक़ज़ी यानी इस पे तहकीकात मौजूद है कि अली की जुल्फ़िकार आसमान से आई थी। जवाब हिल्ली वो होता है जो मुखातब का मुंह बंद करवाने के लिए दिया जाता है। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, मुबल्लिग आज़म मौलाना मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब के, उनसे एक बंदे ने कहा था तुम शियों की समझ नहीं आती, तुम शिया कहते हो अली की जुल्फ़िकार आसमान से उतरी है, वह अनज़लल हदीद भी इस पे गवाह है, तफसीर बातनी के तहत तफसीर के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा तुम शियों की समझ नहीं आती, तुम कहते हो अली की जुल्फ़िकार आसमान से उतरी है। अल्लाह ने आसमान पे कौन सी भट्टियां लगा रखी है जहां लोहा गर्म हो रहा है? किबला ने रुक के कहा, हाजिर जवाब तो थे ना। किबला ने कहा ये बताओ बनी इसराइल के लिए मनो सलवा उतरा था, खाने का तो मोल्ला शौकीन था। उसने कहा जी जी बिल्कुल उतरा था। कहा जिस आसमान पे देगे पक सकती है, चंद किलो का लोहा गर्म नहीं हो सकता।
वसल्लल किबलतैन 2 4 5 इक्तबासात का तर्जुमा होगा, वक्त बहुत हो जाता है, ठीक है। मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने किबलतैन की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, किबला अव्वल की तरफ भी, ठीक है, और दूसरा किबला जो इस वक्त का किबला उसकी तरफ भी रुख करके। हमें कितने किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है? एक ही। शुक्र करो 2 की तरफ नहीं पढ़नी पड़ी, एक की तरफ। तेरा पीर वो है बिलावली जो 2 किबलतैन की तरफ रुख कर करके नमाजें पढ़ता रहा। तू कैसा मौला का मानने वाला, तू एक की तरफ मुंह करके 5 वक्त की नहीं पढ़ सकता। तो कैसा मिला वाला है कि मौलाना देखते हैं छोटी ईद पे फितरा देने आया था, अब बड़ी ईद पे कुर्बानी के मसले पूछने आएगा। तो कैसा मिला वाला है कि जुमे के जुमे नजर आता है, बाकी 5 दिन मस्जिद तेरा इंतजार करती रहती है, ना कोई जाए या ना जाए मातमी जरूर जाए। हई हैया अला खैरिल अमल किसकी अजान में है? मातमी की अजान में है। तो हैया अला खैरिल अमल है क्या? विलायत अली इब्ने अबी तालिब। तो जब मुअज्जिन कहता है ना हैया अला खैरिल अमल, जब मुअज्जिन कहता है ना अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन व औलादहुल मासूमीन, किसी और को नहीं हुसैन के मातमी को बुला रहा होता है। पर मैं उस अली का बेटा हूं जो मैदान जंग में जाता है। जरा अर्ली 70s 80s में चलिएगा, चक्की की तरफ चलिएगा कि जब दाना मशीनों पे नहीं चक्की पे दाने पीसा जाया करते थे। मौला ने फरमाया मैं उस अली का बेटा हूं जो 2 नेज़े जब आपस में टकरा रहे होते हैं वो मैदान जंग में जाता है, अगली सफों में जा जा के लड़ता है और अल्लाह के दुश्मनों को ऐसे पीस देता है जैसे चक्की में दाने पिसा करते हैं। मुनाफिकीन 2 तर्जुमे बस, इल्तमा से दुआ। मुनाफिकीन, तीर कमान तरकश से तीर निकाला जाता है, कमान में डाला जाता है, छोड़ दिया जाता है। अगर तीर बहदफ हो जाए दुश्मन को, अपने शिकार को चीर देता है। फरमाया मैं उस अली का बेटा हूँ, मफहूमी तर्जमा, जो अल्लाह के तीरों में से एक तीर है जो सीधा जाके मुनाफिकों के कलेजों पे लगता है। उठते हाथ सलामत रहे, अभी दाद तुम्हारी मैंने वसूल कर ली, लेकिन जुमला पूरा सवाल फरमाइएगा। अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान है शिया सुन्नी साहिबान, और ये दस्तूर हमने नहीं दिया, ये दस्तूर तो सहाबा ने दिया। जब उस वक्त कोई लेबोरेटरी नहीं थी, उस वक्त डीएनए टेस्ट नहीं होता था, उस वक्त ब्लड टेस्ट नहीं होता था, लेकिन सहाबा ने अदालत कायम करके ये दस्तूर दे दिया। सहाबा कहते हैं जब हमने मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी होती थी हम अली के नाम का नारा लगाते थे, अली का जिक्र छेड़ दिया करते थे। अगर सुन के अली का नाम बंदे का चेहरा खिल उठता था हम समझते थे पक्का मोमिन है, लेकिन अगर माथे पे बल आते थे समझ जाते थे कसूर इसका नहीं, ये पक्का मुनाफिक है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अली हक नारा हैदरी। मैं उस अली का बेटा जो मक्की है, मदनी है, अपने अल्फाज में तर्जुमा करें। मैं उस अली का बेटा हूँ। खैबर में देखोगे तो वो नजर आएगा, खंदक में देखोगे तो वो नजर आएगा, गदीर में देखोगे तो वो नजर आएगा, अशीर में देखोगे तो वो नजर आएगा, आया मुबाहला में देखोगे तो वो नजर आएगा, आया इन्नमा में देखोगे तो वो नजर आएगा, कुरान के पारों में देखोगे तो वो नजर आएगा, हदीसों में देखोगे तो वो नजर आएगा, सितारों में देखोगे तो वो नजर आएगा, अर्श पे देखोगे तो वो नजर आएगा, फर्श पे देखोगे तो वो नजर आएगा, मरने लगोगे तो वो नजर आएगा, कब्र में जाओगे तो वो नजर आएगा, जन्नत में जाओगे तो वो नजर आएगा। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां वो नजर नहीं आएगा। वो मकाम कौन सा है? बस आखिरी मिसरे आपकी जमातों की नजर, इसीलिए कहा मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह तो पैगंबर। जितने नारे आपने मर्जी से लगाए, मैंने नहीं कहा ये लगाइए वो लगाइए, ये ना लगाइए वो लगाइए, लेकिन आखिरी जुमला जब मैं छोड़ूं, जब मैं मिसरा आखिरी पेश करूं तो फिर जी चाहता है कि सारा मजमा पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक खड़े बैठे उठे बैठे हुए। सेहत जितनी खराब है इसके बावजूद भी मैंने हक अदा करने की कोशिश की, राजी रहिएगा। उठे बैठे सारे बवालिया ने हैदर करार एक नारा मिलकर लगाना, हैदर 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 का, ताकि दुश्मन अली को पता चले
علی کے چاہنے والے یکجا تھے 66 عیدی کے اس چوک میں محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ تو پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ عالم کی برآمدی یا کچھ علی مولا علی مولا علی مولا، ہاں آواز دیجیے، کہا میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، بڑی ولایت پڑھی مولا نے، لیکن پھر بھی جملہ کہوں بڑا مشکل تھا مولا کے لیے ولایت پڑھنا، اس لیے کہ جو حسین جیسے بابا کا لاشا بے گور و کفن دیکھ چکا تھا۔ عزیزارو چند جملے سنیے، ایک سوال کا جواب آپ کی ہائے دے گی، علی اکبر کو کس نے سوار کرایا؟ قاسم کو کس نے سوار کرایا تھا؟ اونو محمد کو کس نے گھوڑوں پہ بٹھایا؟ تمہاری ہائے جواب دے رہی ہے حسین نے۔ پھر ایک سوال میں بھی کر لوں، حسین کو کس نے گھوڑے پہ بٹھایا؟ میر انیس نے نقشہ کھینچا، کہا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ اجرکم اللہ۔ اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹیاں، بھیا کو سوار کرا رہی ہیں۔ جب حسین چلنے لگے، کوئی اور ودا نہیں، ایک ودا پڑھنا چاہتا ہوں جو ودا سکینہ سے ودا ہے۔ عزادارو ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا، حسین جانتے تو تھے لیکن پھر بھی ایک مرتبہ ذوالجناح سے پوچھا اپنی زبان حال میں چلتا کیوں نہیں؟ اس نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہونا، بیٹے دیے ہیں تو اللہ بیٹیاں دے، بیٹیاں دی ہیں تو اللہ بیٹے بھی دے۔ تو جب گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، بیٹی کو پتہ بھی ہو معمول کے مطابق بابا کھیتوں میں جا رہا ہے، بابا دکان پہ جا رہا ہے، بابا مزدوری پہ جا رہا ہے، بابا نوکری کے لیے جا رہا ہے، وہ رستہ روک لیتی ہے، کہتی ہے نا بابا آج نہ جا، بابا آج میرے پاس رک جا۔ اور اللہ نہ کرے کسی کا باپ مرنے کے لیے جا رہا ہو۔ عزادارو سکینہ جانتی تھی علی اکبر واپس نہیں آیا، چچا عباس واپس نہیں آئے، ذوالجناح کو جانے نہیں دے رہی۔ حسین ذوالجناح سے اترے ہیں، سکینہ سے پیار کرنا شروع کیا۔ عجیب سوال بچی نے پوچھا، کہا بابا اتنا بتائیے، بابا یتیمہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہا بیٹے کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا بابا جو کل کی رات گزری نا، میں جس بھی خیمے میں جاتی تھی بیویاں کہتی تھی کل سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ کہا حسین نے بیٹے جب تجھے تماچا لگے سمجھنا یتیمی کا موسم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پس زدہ روز یتیمی کا موسم آ گیا، رخصت بھی اسی بچی نے کیا، اور جب واپس ذوالجناح آیا، آخری جملے ہے عزادارو ہو گیا گریا۔ جب ذوالجناح آیا، حسین تو نہیں آئے تھے نا، حالت کیا تھی؟ باغیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، تیرے گھر لوٹنے کا وقت ہو، سینہ پیارا نہ کرنا تو تیری بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور میرا بابا آنے والا ہے۔ سکینہ درے خیمہ پہ آئی، بابا تو نہیں آیا، خالی ذوالجناح آیا،
दोनों बाजू जुलजना के गले में डाले, अजीब सवाल किया, कहा हल सो के या भी हमको दिला निशाना, ओ मेरे बाबा के घोड़े, ओ मुझे इतना बता किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया या प्यासा मारा गया? देखी मेरी तरफ, मैं कहूँगा बीबी पानी तो न मिला, शिवर पे गैरत हुसैन के सीने पे सवार